Let us see the next question. Closing value of the Sensex for the month of October is given below. Date of closing is given and the Sensex value is given. You are required to test, highlight the portion, weak form of efficient market hypothesis by applying the run test at 5% and 10% level of significance. The following values can be used. Value of the T at 5% is 2.101 at 18 degrees of freedom. Value of T at 10% is 1.734 at 18 degrees of freedom, and so on for the readings are given. I request all of you to go through the question, please. I request all of you to pay attention properly now. अभी हम लोग नया जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो कुछ ऐसा है. इट इज अबाउट द रन टेस्ट. रन टेस्ट के लिए जो हमारा वर्किंग है वो कुछ ऐसा होगा. सबसे पहले ये रन टेस्ट क्यों होता है? ये रन टेस्ट होता है टू टेस्ट दैट से वेदर द मार्केट इज इन वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी और नॉट. दैट इज फॉर द बेसिक पर्पस. जैसे ऑटो कोरिलेशन टेस्ट था वैसे ही एक टेस्ट है टू नो दैट से टू चेक दैट वेदर द मार्केट इज इन वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी और नॉट. ना उसके लिए से वी हैव लाइक द रन टेस्ट. अभी रन टेस्ट में हमको जो क्लोजिंग प्राइसेस का इंफॉर्मेशन दिया जाता है, अगर हमको क्लोजिंग प्राइसेस के अलावा भी कुछ दे रखा है तो उसका कोई मतलब नहीं है. क्लोजिंग प्राइसेस ही रेलेवेंट है. उसमें हमको ये देखने का लेट्स से द नंबर ऑफ क्लोजिंग प्राइसेस आर ग्रेटर देन 30 और नंबर ऑफ क्लोजिंग प्राइसेस आर लेस देन इक्वल टू 30, ऐसा देखने का. अगर नंबर ऑफ क्लोजिंग प्राइसेस आर ग्रेटर देन 30, then in that case we are having say concept say which is given a name as like the probability distribution method, in which we use say the Z table, कुछ ऐसा. Over here in this question we have been provided with the information about the closing prices 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, but the number of closing prices over here have been given which is less than equal to 30, that is 20 over here. उस केस में listen carefully, we will be having say the concept like this. We have to see whether we have been provided with sample data for assessment or we have been given population data for assessment. अगर हमको population data दे रखा है then in that case again we are required to use this method that is called probability distribution method, जिसमें हम लोग से ये Z टेबल वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे. और अगर हमको सैंपल डेटा दे रखा है असेसमेंट के लिए तो हमको वहां पे टी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट अप्लाई करना है. यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन में हमको दे रखा है लेट्स से द टी टेबल का रीडिंग. टी स्टैंड्स फॉर से इट इज द टी टेबल रीडिंग इज प्रोवाइडेड टू अस. So of course we are required to assume that say the question is providing the information about the sample data for assessment और हमको टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेस्ट अप्लाई करना है. ये टेस्ट कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको समझाता हूँ और फिर हम लोग इसका कंक्लूजन भी समझेंगे. बट द फर्स्ट थिंग दैट वी अंडरस्टैंड इज वी आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई टी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट ओवर हियर कंसीडरिंग दैट द सैंपल डेटा इज प्रोवाइडेड फॉर असेसमेंट and number of observations are less than equal to 30. So we understand that over here से हमको t distribution का टेस्ट अप्लाई करना है. Everybody is requested to pay attention. देखो t distribution टेस्ट में हमको आगे कैसे वर्किंग करना है वो मैं आपको समझाता हूँ.
सबसे पहले हम लोग स्टेप नंबर 1 में वी विल मेक द कैलकुलेशन ऑफ n1 कॉमा n2 एंड r। यानी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये तीन चीज का कैलकुलेशन करेंगे। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज n1 n2 एंड r। नाउ स्टेप नंबर 2 में we'll make the calculation of mu. Mu is something like say the x bar. Mu will be calculated by using a formula like this: 2 into n1 into n2 divided by n1 plus n2, जो भी आंसर है प्लस 1 ऐसा किया जाएगा। दैट इज द वे द म्यू इज कैलकुलेटेड। उसके बाद we'll make the calculation of the standard deviation. Standard deviation is calculated as under root of the variance, and as far as the variance is concerned, it is calculated as mu minus 1 into mu minus 2 divided by n1 plus n2 minus 1। ये वेरियंस हो जाएगा और फिर उसका हम लोग अंडर रूट करेंगे और उसका अंडर रूट हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन हो जाएगा। दैट इज द वे द स्टैंडर्ड डिविएशन इज सपोज्ड टू बी फाउंड। उसके बाद वी आर रिक्वायर्ड टू यूज द टी टेबल इंफॉर्मेशन। जैसे कि यहाँ पे हमको दे रखा है 5%, 10%, 5%, 10%, 18 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड 20 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो क्वेश्चन में हमको इंफॉर्मेशन कुछ ऐसा दे रखा है, देखो DF डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड परसेंटेज, मैं ऐसा लिख रहा हूँ। देखो 5% लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस, रीडिंग इज 2.101 at 18 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। 10% उसमें 1.734 at 18 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। 20 डिग्रीज में 2.086 और यहाँ पे 1.725, ऐसा हम लोग समझते हैं। नाउ जैसे हमारा प्रेजेंट वैल्यू का टेबल होता है, फ्यूचर वैल्यू का टेबल होता है, जेड टेबल होता है, वैसे ही एक टेबल है जिसका नाम है टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इट इज हेल्पफुल टू ड्रॉ सम कंक्लूजन। कैसे वो भी मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल विल मेक दीज 3 कैलकुलेशंस, जिसपे हम लोग n1, n2 एंड r कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम लोग म्यू कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करेंगे, और फिर हमको 4th स्टेप में एक कैलकुलेशन करना होता है जिसको बोला जाता है म्यू प्लस और माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन इनटू टी टेबल रीडिंग। फॉर n1 प्लस n2 माइनस 1, ऐसा करके। That is what say the kind of the run test that say we are required to follow. First of all, we'll do some calculation and then we'll try to understand that say उन्होंने ये calculation का के हिसाब से how we can draw the conclusion whether the market is in weak form of efficiency or not. सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा calculation करते हैं and then we'll try to understand so the conclusion that say they have provided. यहाँ पे मैं वापस आता हूँ 1-2 मिनट के लिए। देखो क्लोजिंग प्राइसेस इज लेस देन इक्वल टू 30, देन इन दैट केस ये 2 टेस्ट है। सैंपल डेटा फॉर असेसमेंट के लिए टी डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेटा ऑफ असेसमेंट के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सो फार ओनली वंस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय इंस्टीट्यूट इन एग्जामिनेशन। एक ही बार पूछा है जिसमें टी टेबल का रीडिंग दे रखा है, टी टेबल का रीडिंग, इसलिए हमको सैंपल डेटा फॉर असेसमेंट ही करना है। अगर हमको ये क्वेश्चन में और टी टेबल की रीडिंग नहीं दे रखा है पर जेड टेबल का इंफॉर्मेशन दे रखा है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, दैट इज जेड टेबल का इंफॉर्मेशन दे रखा होगा। तो ऐसा मान लेंगे कि हमको पॉपुलेशन डेटा दे रखा है और हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ आंसर।
Everybody is requested to stop writing. Let me explain you. Step number 1, मुझे समझाने दो. Everybody stop writing. Calculation of n1, n2 and r. फ्रेंड्स, मैंने आपको n1, n2 and r का से कैलकुलेशन दे रखा है. What we have to do? We are required to make a comparison. कॉलम नंबर 1 में डेट है, कॉलम नंबर 2 में सेंसेक्स का वैल्यू है, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ वो लिखा है मैंने. n1, n2 और r. देखो, रिड्यूस हुआ तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा, वापस रिड्यूस हुआ यहाँ पे मैंने 2 लिखा. जब भी ये रिड्यूस होता है ना फ्रेंड्स, तभी मैंने उसको नंबर दिया है. दिस इज n2. उसके बाद n1, उसमें क्या किया जाएगा? प्राइस जब भी इंक्रीज होगा ना, तब हम लोग उसको n1 बोलेंगे. प्राइस जब भी इंक्रीज होगा तो n1 बोलेंगे. इंक्रीज एंड अगेन इंक्रीज, ऐसा हम लोग समझते हैं. उसके बाद अनइंटरप्टेड सीक्वेंस ऑफ द प्राइस चेंज. इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स? देखो, दिस इज 1, ये प्राइस इंक्रीज है तो 2, डिक्रीज है तो 3, देखो ये सब इंक्रीज ही है तो 4, डिक्रीज ही है 5. अगर एक भी प्राइस का वेरिएशन आता है ना, तो एक नया आर आ जाएगा. दिस इज 7 एंड दिस इज 8. तो n1 का आंसर है, इट इज 11. n2 का आंसर है 8 और r का आंसर है वापस 8. ऐसा हम लोग समझते हैं. स्टेप नंबर 2 में हम लोग कैलकुलेट करेंगे म्यू. इट विल बी कैलकुलेटेड एज 2 into n1 into n2 डिवाइडेड बाय n1 plus n2. जो भी आंसर है उसमें हम लोग 1 ऐड करेंगे. 2 into n1 is 11, n2 is 8 divided by 11 plus 8. So over here it is 2 into 11 into 8, that comes to 176 upon 19. जो भी आंसर है उसमें 1 ऐड किया जाएगा. So 10.2632. ऐसा करके म्यू का कैलकुलेशन. स्टेप नंबर 3 में स्टैंडर्ड डिविएशन. It is calculated as under root of the variance. So it is mu minus 1 into mu minus 2 divided by n1 plus n2 minus 1. उसका क्या करना है? अंडर रूट करना है. So 10.2632 minus 1, 10.2632 minus 2 divided by n1 is 11, n2 is 8 minus 1. तो इसका कैलकुलेशन होगा 10.2632 minus 1. So it is 9.2632 into 8.2632 divided by 18. जो भी आंसर है उसका रूट करने का है. 2.0621. That is the way the standard deviation is found. फोर्थ स्टेप में समझा, उसके पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूं. एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन.
देखो ये थियरी का कहना कुछ ऐसा है, सपोज हमने पास के प्राइसेस देखे कोई एक सिक्योरिटी के, जिसमें क्या हो रहा है, द प्राइस इंक्रीजेस 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 इंक्रीजेस, decreases 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 decreases, increases 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 increases. Suppose the prices are changing like this, ये प्राइस पहले बहुत बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर वापस बढ़ता है, फिर वापस कम होता है, वापस बढ़ता है। यानी कि जब भी प्राइस एक डायरेक्शन में चेंज होता है ना, तो वही डायरेक्शन में बहुत सारा प्राइसेस जाता है, फिर वो गिरता है, तो गिरता है तो भी क्या होता है, दैट से इट इज से कॉन्स्टेंटली रिड्यूसिंग फॉर सम टाइम पीरियड, लाइक दैट से द प्राइस चेंज जो है ना, वो एक डायरेक्शन में फिर थोड़े टाइम पीरियड तक उसी डायरेक्शन में जाता है, नीचे आएगा, उसके बाद वही डायरेक्शन में बहुत टाइम पीरियड तक नीचे जाएगा। सपोज ऐसा सिचुएशन है, देन इन दैट केस व्हाट डू यू थिंक, हम लोग फ्यूचर का प्राइस का प्रेडिक्शन इजीली कर सकते हैं या वो प्रेडिक्शन करना डिफिकल्ट है? फ्रेंड्स ऐसी सिचुएशन में प्रेडिक्शन करना काफी आसान है। देखो प्राइस इंक्रीज हो रहा है काफी समय तक, फिर डिक्रीज हो रहा है काफी, दैट इज काफी समय, वापस इंक्रीज हो रहा है, वापस डिक्रीज हो रहा है। इफ एट ऑल द प्राइसेस चेंजेस लाइक दिस, देन इन दैट केस देखो यहां पे जब प्राइस इंक्रीज होगा ना, इमीडिएटली हमको पता चलेगा कि अभी थोड़े टाइम के लिए प्राइस इंक्रीज ही होने वाला है। इंक्रीज होके जब वो डिक्रीज होना शुरू होगा ना, तो हमको पता चल जाएगा दैट से यहाँ पे ये रिड्यूस ही होने वाला है। What I want to tell you is that say you'll be able to easily predict that say if at all the price change is, that is uninterrupted sequence of the price change is very less, ऐसा हम लोग समझते हैं। Everybody please pay attention, let me explain you. देखो ये क्वेश्चन में एक्चुअली हमारा अनइंटरप्टेड सीक्वेंस ऑफ द प्राइस चेंज कितना है, 8 है। म्यू का मतलब क्या, एक्स बार। एक्स बार क्या बताता है, एक्स बार ये बताता है कि अनइंटरप्टेड सीक्वेंस ऑफ द प्राइस चेंज क्या होना चाहिए, होना चाहिए 10.2632, होना ये चाहिए, एक्चुअली ये है। ये जो म्यू है ना, म्यू इज वेरी सिंपल, म्यू इज वेरी सिमिलर टू द एक्स बार। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि एक्चुअली अनइंटरप्टेड सीक्वेंस ऑफ द प्राइस चेंज ये होना चाहिए, पर उसके कंपैरिजन में ये है। तो कैन वी से दैट इट इज नॉट इन वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी? द आंसर इज नो, इट इज नॉट लाइक दैट। अच्छा, उनका दूसरा एक कहना ऐसा है, लिसन केयरफुली, कि देखो आर बहुत कम हुआ ना, तो मार्केट वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी में नहीं है। आर बहुत कम हुआ, देन इन दैट केस होना कितना चाहिए, होना ये इतना चाहिए, पर उसके कंपैरिजन में बहुत कम है, देन द मार्केट इज नॉट इन वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी, ऐसा उनका कहना है। सर ये बहुत का मतलब क्या, वो मैं आपको समझाता हूं। अच्छा, सपोज कि ऐसा होता है कि इन अ टाइम पीरियड ऑफ 20 डेज, 20 दिन का जो टाइम पीरियड है उसमें, या कोई भी और टाइम पीरियड है उसमें क्या होता है, 2 दिन प्राइस बढ़ता है, 2 दिन गिरता है, 2 दिन बढ़ता है, 2 दिन गिरता है, 1 दिन गिरता है, 2 दिन गिरता है, दैट इज 1 दिन बढ़ता है, 2 दिन गिरता है, 2 दिन बढ़ा, 1 दिन कम हुआ, 1 दिन ऊपर गया, 1 दिन नीचे गया, ऐसा करके हर रोज फ्लक्चुएशन होता है, हर रोज, ऑलमोस्ट हर रोज से तो 2 दिन में तो हो ही जाता है, कौन से, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इस सिचुएशन में प्रेडिक्शन करना डिफिकल्ट होगा या सिंपल होगा? राइट इन द चैट बॉक्स। यानी हम लोग कुछ ऐसा बोल सकते हैं, लेट अस से दैट से आज का डेट है 1 अगस्त, सिक्योरिटी का प्राइस कल के कंपैरिजन में आज बढ़ा है, 2 अगस्त आज भी बढ़ा है। कैन आई प्रिडिक्ट दैट से द 3 अगस्त में ये प्राइस गिरने वाला है?
क्यों? क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा है। यस, वी कैन ड्रॉ दैट कंक्लूजन। क्यों? क्योंकि ये सिक्योरिटी के प्राइस में क्या बहुत ही फ्लक्चुएशन है। सो दिस इज व्हाट आई कैन प्रेडिक्ट। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या होता है कि हर रोज प्राइस ऑलमोस्ट रॉन्ग, दैट इज ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होता है, या तो एटलीस्ट 2 दिन के बाद तो हो ही जाता है। तो अगर ऐसा फ्लक्चुएशंस बहुत है, इवन इन दैट केस आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो। और अगर आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो ना, देन इन दैट केस द मार्केट इज नॉट इन वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। सो ये जो आर अगर कम है तो भी मार्केट इज नॉट वीक इन वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी, और अगर आर का वैल्यू बहुत ज्यादा है तो भी द मार्केट इज नॉट इन वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। ऐसा हम लोग समझते हैं। यानी क्या हुआ कि आर का वैल्यू होना कितना चाहिए, 10 दैट इज से 26। बहुत कम है तो भी मार्केट इज नॉट इन वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी, बहुत ज्यादा है तो भी वो वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी नहीं है, ऐसा हम लोग समझते हैं। तो न बहुत ज्यादा होना चाहिए न बहुत कम होना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया है, लिसन केयरफुली, इसलिए उन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया है। और हम लोग क्या करेंगे, लिसन केयरफुली, हम लोग ऐसा करेंगे, म्यू प्लस और माइनस टी टेबल रीडिंग इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन। लिसन केयरफुली, हमारे एग्जांपल में म्यू कितना है, 10.2632 माइनस टी टेबल रीडिंग किसका किया जाएगा, n1 प्लस n2 माइनस 1, इसका टी टेबल रीडिंग किया जाएगा। यानी हमारे एग्जांपल में क्या होगा, 11 प्लस 8 माइनस 1, 11 प्लस 8 माइनस 1 क्या होगा फ्रेंड्स, इट इज 18। यानी 18 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से वाला हमको रीडिंग देखने का। सो वी अंडरस्टैंड इट्स ओवर हियर 10.2632 माइनस 18 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अभी मैं रीड कर रहा हूं सर, ये 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है वो मैं समझाता हूं आपको। देखो 2.101 is subtracted from 10.2632, so it is 8.1622. 10.2632 plus 2.101, it is 12.3642. सॉरी, इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन करना मैं भूल गया। स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, स्टैंडर्ड डिविएशन है 2.0621। So we understand it's over here 2.101 into 2.0621। ये जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, 10.2632 से डिडक्ट करेंगे, तो 5.93, 2.101 into 2.0621 plus 10.2633, that is 14.60। तो उनका कहना क्या है फ्रेंड्स, उनका कहना ऐसा है कि म्यू प्लस और माइनस टी टेबल रीडिंग फॉर n1 प्लस n2 माइनस 1, यानी कि 18 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन, ये रेंज में अगर r का वैल्यू फॉल होता है, देन इन दैट केस द मार्केट इज इन वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी, नॉट अदरवाइज। हमारे क्वेश्चन में r का वैल्यू कितना है, 8 है, 8 इन दोनों के बीच में फॉल होता है, हाँ। सो वी अंडरस्टैंड दैट द मार्केट इज इन वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी, क्योंकि अनइंटरप्टेड सीक्वेंस ऑफ द प्राइस चेंज न बहुत ज्यादा है न बहुत कम है, ऐसा उनका कहना है।
सर ये 5% लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है? 5% लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस का मतलब ये है कि हमने ये जो कंक्लूजन ड्रॉ किया है ना, उसमें 5% चांस है कि गलती हो सकता है. The conclusion that say we draw is having say the 5% probability of the failure. The same thing is required to be done by us say for 10% level of the significance, जिसमें क्या होगा, जिसमें सिर्फ ये जो टी टेबल रीडिंग का वैल्यू है ना वो चेंज हो जाएगा, उसके अलावा और कोई चेंज होगा नहीं, ऐसा हम लोग समझते हैं.